Hello everyone, welcome back to this channel. So today we are going to solve exercise of class 12 economics chapter 7 in national income. Okay guys. So we have to come on page number 69. Yeah, as you can see here, we are on page number 69. Okay. So we will go through each question one by one. Now pay attention please. Okay, so our first question is question number 1. Complete the following statement. First, while estimating national income, we include only value of final goods and services in order to avoid double counting. Yes guys, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को फौरन से खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा, है ना. सो इसका आंसर क्या है? डबल. अवॉइड डबल काउंटिंग. द हाईलाइटेड पार्ट इज आर आंसर. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज NDP is obtained by B, deducting depreciation from GDP. Okay. Now, third question. In India, national income is estimated using combination of output and income method. Okay, so now question number 2, complete the correlation. First, GDP. हमें क्या लिखना है इस कॉलम में? GDP. Okay. Wait a second, guys. Yeah. So जो हमारा यहाँ पे कॉलम होगा, you have to write as I have written here. Okay, GDP. Okay. बाकी पूरा जो है वैसे का वैसे रहेगा. नेक्स्ट, दिस ब्रैकेट you have to write product method or inventory method. Okay, product method or inventory method. And last, practical difficulty. यहाँ पे क्या दिया है देखो, theoretical difficulty, transfer payment, right? So यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Valuation of inventories. So क्या आएगा? Yes, practical difficulties. Good job guys. Yeah, next one is question number 3, choose the correct option. तो ये हम सारा रीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू हैव टू कम हियर. सो हियर वी आर. सो इसमें क्या आएगा हमारा? यस, D1. ओके. चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमें कौन सा चूज करना है? डी. ओके. ये जो एक्सपेंडिचर मेथड दिख रहा है ना आपको, national income is equal to rent plus wages plus interest plus profit. Yes. Okay. Now question number 4. Identify and explain the following concept. हमें क्या पूछा गया है? Verinda receives monthly pension of rupees 5,000 from the state government. So क्या लगता है guys इसका क्या होगा? Yes, सोचो सोचो. Yes, you are right. Transfer payment. Yes guys. यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को ये खुद से लिखना है. ये आप लोगों को कोई टेक्स्ट बुक में मार्क वगैरह नहीं कराया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है आप लोगों के लिए. सो यू हैव टू कॉपी इट. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्यूशन. देखो ऐसे लिखना ही है आपको. कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर पेमेंट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स. गेट इट? गुड. Okay, so our next question of question number 4 is Viru kept aside 100 kgs. You guys can see we are here, okay? Yeah. So Viru kept aside 100 kgs out of 50 kgs of wheat produced in his farm for his family. So yes, सेल्फ कंजम्पशन. उसने किसके लिए रखा था? अपनी फैमिली के लिए 100 kgs. सो क्या आएगा इसका? सेल्फ कंजम्पशन. सेम यहाँ पे भी आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, देन एक्सप्लेनेशन देना है. बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वन. Sheetal purchased wheat flour for her bakery from the flour mill. Intermediate goods. Okay. Fourth one is this. हमने ये कर लिया ना. यस, थर्ड वन वी हैव डन. शीतल परचेज व्हीट फ्लोर फ्रॉम हर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल. या. सो फोर्थ वन इज शोभा कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19. चलो हम फिफ्थ भी रीड कर लेते हैं, देन डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, विच इज फिफ्थ. Rajendra has a total stock of rupees 50 gel pens in his shop, which include 200 gel pens produced in the previous financial year. So, yep, this is our fourth solution. Okay, national income and intermediate goods, and this is inventory. Okay, guys. Now we will move to question number 5. Okay, so now you just have to tick mark. Okay. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दी फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया? एक्सप्लेन टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. तो व्हाट वी हैव टू डू,
Yes, you have to come on page number 62. We are on page number 62, right? सो 62 पर आ गए हम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसे ड्रॉ कर लेना है बहुत अच्छा सा। ये आपके आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसे आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ क्या करना है आप लोगों को, ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है राइट से राइट मैंने किया, हाईलाइट किया, प्लस आप लोगों को मार्क करके भी दिखाया। ओके, सो ये हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले वो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, देयर आर टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फार्म्स। फिर थर्ड पॉइंट, द अपर हाफ रिप्रेजेंट द फैक्ट्री मार्केट एंड द लोअर पार्ट हाफ रिप्रेजेंट द कमोडिटी मार्केट। ये 3 पॉइंट हो गया हमारा। ये रहा चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां। गाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। ओके गाइज, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। ओके, आई विल गो स्लो नाउ। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट्स एंडिंग हियर। गॉट इट? हमें मिल गया 3 पॉइंट्स हमारे। नाउ अब चौथा पॉइंट हमें नीचे की तरफ मिलेगा। ये रहा हमारा चौथा पॉइंट, दस गुड्स फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फार्म्स एंड फ्रॉम द फार्म बैक टू द हाउस होल्ड, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लोज। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फार्म्स टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री पेमेंट सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया। और फिर हमारा ये अनदर पॉइंट 10 से लेके फ्लोज तक। ओके, फिर ये भी मिल गया हमें पॉइंट्स। ओके, यस हो गया गाइस, इतना ही था। अच्छा, किसी किसी को ऐसा बहुत बड़ा आंसर लिखता है, ठीक है, तो वो जिस हिसाब से आपको एग्जाम में आने वाला है आपको पता होगा, वो 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, तो आप उस हिसाब से अपने पॉइंट्स कर सकते हो। ठीक है, अगर वो सपोज 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आप 6 पॉइंट लिखो। 5 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको 10 पॉइंट्स लिखने ही हो गया। 12 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 24 पॉइंट्स, ऐसे समझ रहे हो, मतलब कि 1 मार्क्स के 12 मार्क्स के लिए आएगा नहीं। आई एम जस्ट सेइंग गाइस, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो भी आपको जितने मार्क्स का भी आ रहा है, 1 मार्क्स के लिए आपको लिखने हैं 2 पॉइंट्स, तो वैसे पॉइंट्स बनाकर लिख दो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। सो 68 पे आ जाएंगे हम। दिख गया, स्टार भी बनाया है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको यहाँ तक का, जो मैंने सोसाइटी में मार्क किया है, वो पूरे आपको लिखने हैं। ठीक है, भले से आप इसको छोटा बड़ा करके कैसे भी एक्सप्लेन कर दो, मगर ये सारे पॉइंट्स लिखो। फॉर द इकोनॉमी, नेशनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिसर्च, कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, आपको ये बस पॉइंट्स देने हैं, और आप सेम एज इट इज ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, और आपको जिस तरह से जमता है लिखने वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो हमने ये भी देख लिया। ये आंसर बहुत छोटा सा प्यारा सा था, फौरन से हो गया है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में भी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके लिए आना है हमें 61 पे। अच्छा गाइज, हमें बहुत ज़्यादा पीछे आ जाना पड़ा। ओके, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ भी रीड आउट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ GNP। ओके, तो हम इन दोनों को साथ में देखेंगे, तो लेकिन हम पहला कौन सा देखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना है कहाँ पर, 61 पे गाइस। या हमें क्या पूछा गया था, नेशनल इनकम का फीचर्स, राइट। तो ये रहा फीचर्स। ठीक है, दिख गया, मनी वैल्यू तक ये सारे फीचर्स आपके। इसमें देखो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ही पॉइंट्स है, इसको कुछ ज्यादा झोल झाल मत करो। इतना लिखना है तो एटलीस्ट आपको पड़ेगा ही, हर चीज को शॉर्टकट मत करो। ठीक है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्रीन GNP का कॉन्सेप्ट भी हमें बताना था, राइट। तो ये रहा ग्रीन GNP का कॉन्सेप्ट। ओके, ये सब चीज़ें जो हमारी कोरोना के टाइम पे बैचेस का हुआ है, बोर्ड एग्जाम, उनको तो नहीं थी,
but you are not that much lucky. So you have to study this as well. Okay guys, क्या है ये? यस, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है ये. ओके, ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट, ये पूरी चीजें ही एक्सप्लेन करना है. ये अच्छा, आप समझ तो रहे हो ना? ये जो पर्पल बॉक्स दिया हुआ है हमें, ये पूरा लिखना है. पहले आपको क्या करना होगा? क्या ये भी लिखोगे? यू शुड नो. नो, यू विल नॉट राइट दिस. यहां से लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी, फिर फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन जीएनपी, एंड लास्ट में मेजरमेंट भी लिख देना. ठीक है? ओके, चलो ठीक है. हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. या स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री or disagree with the following statement. First one is there are many theoretical difficulties in the measurement of national income. क्या लगता है guys? Do you agree or disagree? Of course you have to agree guys. Okay, तो इसके लिए 67 पे आना है. ओके, ये रहे 67 पे हम. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले लिखना है आई अग्री विद द अबो स्टेटमेंट, रीजन, फिर क्या लिखोगे? समझ आ रही है बात? क्या लिखना है सबसे पहले? आई अग्री विद द अबो स्टेटमेंट, और रीजन क्या लिखोगे? ऐसे रीजन डाल के, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, क्या ये पूरे 8 के 8 पॉइंट लिखोगे? नो. तुमको उसको ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स मिलने वाला है. 1 मार्क्स तुम अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो उस पे मिलेगा, और दूसरा मार्क्स आपको किस पे मिलेगा? रीजन पे. तो आप 1 मार्क्स के हिसाब से ही लिखो. ये 1 2 पॉइंट उठाओ, उसको छोटे छोटे करके 3 पॉइंट लिख दो. ठीक है, जो भी इजी लगता है 3 पॉइंट लिखो, उसको छोटा करके लिख दो. बस हो गया. आपको बस 1 मार्क्स के लिए लिखना है. ठीक है, तो 3 पॉइंट ऐसे कोई भी ढूंढ लो, समझो कि मुझे ये बहुत आसान पॉइंट लग रहा है. ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑफ डाउट काउंटिंग. तो फिर मैं ये लिखूंगी प्रॉब्लम ऑफ डाउट काउंटिंग. ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इज ऑफ डबल काउंटिंग. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करके हमें 3 पॉइंट लिख देने. दैट विल बी मोर देन इनफ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वन. अंडर आउटपुट वैल्यू, under output method value added approach is used to avoid double counting. So क्या लगता है? Yes. Yes, guys, you have to agree on this as well because this is correct statement. So question number 4. सबसे पहले क्या लिखोगे? Yes, guys. I agree with the above statement. Reason: in order to avoid double counting, value added approach is used. यहाँ से ये लिखा आपने, वैसे तो वो लिखा आपने कि क्या होता है डबल काउंटिंग, क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो आपको क्या लिखना है? आई अग्री विद द अबो स्टेटमेंट. रीजन, फिर 1 करके क्या लिखना है? ये वाला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट होगा ये यहाँ तक, एंड थर्ड पॉइंट विल बी दिस. ओके, गेट इट क्लियर? ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है जैसे, अच्छा मैंने ये बताया ना कि कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 3 बना के दिए, वैसे ही क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में भी निकाल के आपको जो भी इजी लगता है वो लिख लो. और आपको ऐसा लगता है कि पूरा ही लिखना है तो पूरा भी लिख दो भाई, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर किसी को भी पूरा नहीं लिखना होगा. Okay, question number 7. Answer in detail. First, explain the practical difficulties involved in the measurement of national income. So, question number 7 का first answer हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 67 पे. Yes, guys. So, मैंने तो आप लोगों को पहले क्या कहा था? अग्री और डिसअग्री में कि थोड़े से पॉइंट लिखना है, लेकिन ये एक बड़ा सा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या लिखना है? आपको पूरा ही लिख देना है, पूरा पॉइंट्स. ठीक है, ये दिख गया ना यहाँ पे स्टार 1 आपको, ये वाला, this one. Yes, so you have to write problem of double counting, existence of non monetized sector, ये हो गया. फिर हमारा 4th पॉइंट ये हो गया, 5th पॉइंट ये हो गया, 6th पॉइंट ये हो गया, 7th पॉइंट ये हो गया, 8 पॉइंट एंड लास्ट वन इज ये वाला. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. ओके, तो ये पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं चलेगा गाइस. ओके, now question number 7 second, explain the income method and expenditure method of measuring national income. सो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आ जाना पेज नंबर 65 पे. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सो
एक बार और मैं रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन, सॉरी गाइस। एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सो 65 पे आए, या इनकम मेथड मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट समझ में आ रहा है। आपको क्या लिखना है, इनकम मेथड, फिर उसके पॉइंट्स लिखना है। आप ऐसे ही लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे थोड़ा बोल्ड में, ठीक है। इनकम मेथड, फिर उसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से, मैं बताती हूँ कहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ, वहां से यहाँ तक, इग्नोर तक, थर्ड जीएनपी से पीरियड तक, और फोर्थ एंड लास्ट विल बी दिस। ओके, ये लिख दिया हमने, हो गया हमारा इनकम मेथड। अब आना है हमें पेज नंबर 66 पे, सॉरी 66 पे। अब लिखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालनी है एक्सपेंडिचर मेथड, और यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट्स बनाया, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आप देखते जाओ। आपको इतना टिक मार्क किया आपने, इतना लिख दिया, और लास्ट पॉइंट विल बी दिस। अच्छा, वहां पे क्योंकि ये चीजें एक्सप्लेन की गई हुई थी, यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये भी लिखोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। मतलब आपको क्या पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, बस आपको ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान दो, ये चीज लिखना है इधर। फिर नेक्स्ट बस वन पॉइंट में इतना ही, सेकेंड ये यहाँ से यहाँ तक, थर्ड फोर्थ जो भी है आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को 5 तक लिख देना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ नेट रिसिप्ट आरपी, इतना ही। बस हमने क्या करना है ना, हमें कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे उससे बताया, तो उसको एक्सप्लेन कर देना कि सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स एन एम क्या है, आर एन पी क्या है, बस इतनी ही चीज थी, बस बाकी पूरे पॉइंट्स नहीं लिखना। सो गाइस, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप कि ये चैप्टर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सब चीज़ आसानी से मिल जा रही है, बहुत जगह पे कॉम्प्लिकेशंस आती है। ओके, सो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली बात बिल्कुल भी मुझे 1% भी नहीं लगी, लेकिन स्टिल किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन आ सकता है, राइट, एवरीवन इज डिफरेंट। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। कहाँ पर पूछोगे, मेरे व्हाट्सएप पर, नो, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।